नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। बजट में चंडीगढ़ को 1.96 करोड़ रुपए अधिक मिले गत वर्ष के मुकाबले। नगर निगम में बजट को लेकर तीखी बहस। मेयर बोली ना नया टैक्स लगेगा ना बढ़ेंगे पानी के दाम। और ट्राई सिटी में कोरोना ने ली 9 लोगों की जान, 797 नए मामले आए सामने। स्टूडेंट्स ने बनाए रखी स्कूल और कॉलेज से दूरी। और अब खबरें विस्तार से। आम बजट में चंडीगढ़ को वित्त मंत्रालय ने गत वर्ष के मुकाबले 1.96 करोड़ रुपए का अधिक बजट दिया है। हालांकि प्रशासन ने इससे अधिक की मांग की थी, लेकिन उन्हें मिला थोड़ा कम ही है। 2022-2023 के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। चंडीगढ़ को कुल 5,382 करोड़ रुपए का बजट मिला है। इसमें रेवेन्यू हेड के तहत 4,843.86 करोड़ रुपए और कैपिटल हेड के तहत 5,539.33 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बार केंद्र से चंडीगढ़ को पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ अधिक मिला है, लेकिन चंडीगढ़ ने 5836 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो कि पूरी नहीं हुई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम की सदन की बैठक में हंगामे के बीच 1725 करोड़ का बजट पास हो गया है। बजट को लेकर सभी पार्षदों ने कई सवाल उठाए, जिसमें पानी के 3 गुना बढ़ाए गए रेट को मार्च के बाद फिर से बढ़ाने पर खूब हंगामा हुआ। हालांकि इस पर मेयर ने आश्वासन दिया कि शहर में ना तो कोई अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा और ना ही पानी के रेट बढ़ेंगे। 25.19 करोड़ ਦਾ बजट पास किया गया है। ਉਹਦੇ ਚ कुल आमदनी खर्च 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 985.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਮਦਨੀ ਖਰਚ 2022 ਤੋਂ 1323.77 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਡਾ 1155.61 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਡਾ 1725.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ए ਹਾਊਸ ਅਗਰ एंट्री करती है तो ਅਸੀਂ सारे मिलके चंडीगढ़ ते पिंडा का डेवलपमेंट करनी है। सदन की बैठक में कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत गाबी ने गौशाला का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में गौशाला की बुरी हालत है। और सेस वसूली के बावजूद गौशाला की हालत को सुधारा नहीं गया है। मेयर साहब बजट तो वाकफ नहीं सन कि बजट में की चीज़ा है ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਉਸੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਔਰ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ 2021-22 ਸੀ ਉਸ ਇਹਨਾਂ 150 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਉਹਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 156 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੈਡਮ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ जवाब नहीं सी आ रहा। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरदीप सिंह ने बजट में गांव की अनदेखी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया। मैं अज जो पिंडा की गल कर रहा जी, पेज नंबर 47 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ 9 ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਹੱਲੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਜੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਲਸੌਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਮगर ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। वहीं हरप्रीत कौर बबला ने सदन में प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन और सेक्टर 27 व 28 में बंदरों के आतंक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं,
इसलिए इस पर बजट रखा जाना चाहिए। सेक्टर 27-28 की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे शहर की प्रॉब्लम है। और अब तो इतना बढ़ चुका है कि जो पार्क्स हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर सुंदर पार्क्स बना रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए, बुजुर्गों के सैर करने के लिए, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोनों जने ये जो फैसिलिटी है इसको अवेल नहीं कर पा रहे। रीज़न भी क्योंकि इतना ज़्यादा मंकी मैंने फैल चुका है कि अभी पिछले हफ्ते 2-3 बच्चों को मंकी से सेक्टर 28 में काटा है। तो मैंने अपील की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वो लोग आए लेके, पर वो बहुत टेम्परेरी सा तरीका है। मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे कुछ महीनों के लिए ऐसे बंदे छोड़ने पड़ेंगे जो कि लंगूर की आवाज़ निकालते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले 2-3 सालों से मैं और बबला जी अपनी पॉकेट से खर्च कर रहे हैं और हम इन लोगों को हायर करते हैं लंगूर भगाने के लिए। पर मैंने देखा कि कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से या फॉरेस्ट की कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जा रहा जो कि एक परमानेंट इलाज कर पाए। वहीं बजट में आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगातार विरोध किया गया। बजट को लेकर पार्षद आप दमनप्रीत सिंह ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੁਐਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਰੁਕਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 156 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। पिंजौर के गांव मडावाला में दो समुदाय में तीखी झड़प हो गई। झड़प इतनी अधिक थी कि वहां पहुंची पुलिस पर भी इन हमलावरों ने हमला बोल दिया। दोनों गुटों ने पुलिस पर डंडे बरसा दिए, जिसमें कि मडावाला चौकी के इंचार्ज पूरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें सेक्टर 6 पंचकुला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गांव मडावाला में भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोरोना के मामलों में आई लगातार कमी के बाद मंगलवार से शहर के स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए थे। हालांकि स्कूलों में अभी 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ही शुरू की गई थी, जिसमें 15 से 18 वर्ष के स्टूडेंट्स को कोरोना की एक डोज लगवानी अनिवार्य थी और टीचर्स को भी दोनों डोज लगवानी अनिवार्य थी। लेकिन देखने में आया कि स्कूल और कॉलेजों में स्टूडेंट्स की हाजिरी बहुत ही कम रही, यानी कि स्टूडेंट्स अभी भी कोरोना के खौफ में है और ऑनलाइन विकल्प ही अपना रहे हैं। चंडीगढ़ में कोरोना मामलों में आई कमी के बाद शहर के प्रशासन की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने के आदेश के बाद मंगलवार को कई स्कूल खुल गए। कॉलेजों में भी कक्षाएं लगनी शुरू हो गई। स्कूल कॉलेज खुलने के पहले दिन इन स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम ही रही। वहीं जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स पहुंचे वहां उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही एंट्री की। स्कूल प्रशासन भी पूरी तरह से सावधानी बरतते दिखे। वहीं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर प्रभजोत कौर ने बताया कि शहर के सभी सरकारी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। आज फर्स्ट डे था, लेकिन स्ट्रेंथ अभी 1% ही रही है, लेकिन उम्मीद है कि आगे आगे बच्चे भी आएंगे, बिकॉज आज फॉगिंग भी थी, मौसम भी नहीं ठीक था, तो मे बी पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कंसर्न्ड है कि कोविड के केसेस अभी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हुआ पेरेंट्स का। मे बी आफ्टर फ्यू डेज दे विल सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। तो मैम ये अभी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 10th to 12th क्लास में जो 1100 के करीब और वैक्सीनेटेड कितने हो चुके हैं? अराउंड 900 है। 900 हो चुके हैं। ठीक है, तो मैम अभी कितना डिफिकल्ट रहा ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना स्टूडेंट्स को? ऑनलाइन क्लासेस में डिफ़िकल्टी तो है, टीचर को नज़र नहीं आता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो तो डिफ़िकल्टी है, लेकिन कोशिश तो टीचर्स की बहुत रही है कि पूरा जितना सिलेबस हम करवा सकते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम्स तो स्टॉप नहीं हुए ना। सीबीएसई के टर्म 1 एग्ज़ाम्स कंक्लूड हो गए हैं और टर्म 2 स्टार्ट हो गई है, तो टीचर्स तो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम अपना टाइमली सिलेबस जो है कवर कर सकें और बच्चों का कोई लॉस ना हो।
ठीक है मैम, आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ बढ़ने की संभावना है स्कूल में जो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, बच्चे आएंगे स्कूल। गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने फिलहाल 10वीं से 12वीं कक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए ही स्कूल खोले हैं। इन कक्षाओं में 15 से 18 आयु के स्टूडेंट शामिल हैं। इनके लिए प्रशासन की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई जा रही है। इसके लिए स्कूलों में भी विशेष वैक्सीनेशन कैंप चलाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट के लिए अभी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं भी चला रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए स्कूल आना अनिवार्य नहीं किया गया है। वहीं अगर आने वाले दिनों में कोरोना के केसों में और ज्यादा कमी आती है तो प्रशासन और कक्षाओं को खोलने को लेकर भी विचार कर सकता है। कोरोना की तीसरी लहर में इस साल की शुरुआत में कोरोना के केसों की संख्या बढ़ने के बाद 10 जनवरी से स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद अब जाकर स्कूल खुले हैं। 10 जनवरी को स्कूलों के साथ ही कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स भी बंद रखने के आदेश दिए गए थे। शहर में कोरोना के बीते सोमवार को 344 नए मामले सामने आए। बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले 500 से नीचे आ रहे हैं। वहीं अभी तक शहर में 89,488 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 85,138 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं शहर में कोरोना से 1,122 लोग दम तोड़ चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने 2 युवकों को देसी कट्टों और कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं और एक दीपू बनूड़ का भाई भी है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बनूड़ निवासी रवि कुमार और बुड़ैल निवासी संजीव उर्फ सोनू के रूप में हुई है। दोनों से पूछताछ जारी है। डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल को मिली बड़ी कामयाबी। क्राइम सेल के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। कब्जे से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल और उनकी टीम ने मकड़जाल बनाकर 2 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा। दोनों के कब्जे से 2 कंट्री मेड पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी की पहचान बनूड़ निवासी रवि कुमार और बुड़ैल निवासी संजीव उर्फ सोनू के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं और दीपू बनूड़ का रिश्तेदार में भाई है। चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चाल की ओर से बनाई गई डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम आए दिन कोई न कोई बड़े खुलासे कर रही है और कुख्यात आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल रही है। इतना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम ने पहले भी कई नशा तस्करों को भी सलाखों के पीछे भेजा है और चंडीगढ़ से अवैध कारोबार करने वाले कारोबारियों को भी जेल की हवा खिलाई है। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम अपना काम कर रही है और उसे देखते हुए ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय में डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम चंडीगढ़ से अपराध और अपराधियों को जड़ से खत्म कर देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में हुई धांधली और फर्जी आवेदकों और अभ्यर्थियों की धरपकड़ अभी भी जारी है। पुलिस ने इसी क्रम में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि किसी दूसरे की परीक्षा देने आए थे। इसके साथ ही अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 26 हो गई है। इन तीनों को भी अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जी देखिए, इसमें 3 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। जो भर्ती में धोखाधड़ी का जो मामला है उसमें 2 कैंडिडेट्स हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जो दूसरे कैंडिडेट की जगह अवैध रूप से दौड़ लगाने के लिए शामिल हुआ है प्रक्रिया में। तो अभी तक सर कितनी गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं? टोटल गिरफ्तारियां अभी तक 26 हो चुकी हैं इसमें। सर अभी कोई मेन रोल आया है किसी व्यक्ति का इन गिरफ्तारियों में जो पूरी भर्ती प्रक्रिया में सब सेटिंग करवाते थे लोग? देखिए, कुछ व्यक्तियों के ऐसे रोल आए हैं, वो अभी उस बारे में छानबीन जारी है। अभी जो इस धोखाधड़ी में लिप्त हैं ऐसे व्यक्तियों के रोल सामने आए हैं, उस बारे में अभी जांच जारी है। रायपुर रानी के पास एक वर्ना कार में सड़क के बीचों बीच आग लगी।
आग इतनी भयंकर थी कि चंद मिनटों में ही पूरी कार जलकर राख हो गई। इस कार में सहारनपुर से आए 4 व्यक्ति सवार थे जो कि शिमला घूमने जा रहे थे, लेकिन अचानक कार के पिछले हिस्से में आग लग गई। राह चलते एक कार चालक ने इसकी सूचना इन कार चालकों को दी, जिन्होंने गाड़ी रोक कर देखा तो पिछले हिस्से पर आग लगी थी। आग बुझाने की कोशिश तो की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस और दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। पंचकुला के रायपुर रानी में आज एक चलती वर्ना कार में आग लगने का मामला सामने आया। वर्ना कार में 4 युवक सवार थे, जिस समय कार में आग लगी। कार में सवार 4 युवक सहारनपुर यूपी से शिमला घूमने जा रहे थे। जैसे ही युवक रायपुर रानी तहसील कार्यालय के पास पहुंचे तो उनकी कार में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक एक अन्य कार सवार ने उन्हें जानकारी दी कि उनकी कार में आग लगी हुई है, जिसके बाद ड्राइवर ने कार को रोका और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग बढ़ती चली गई। इसके बाद आग लगने की सूचना स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, वरना कार जलकर राख हो गई थी। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी पीएसआई आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि तहसील कार्यालय के पास चलती कार में आग लग गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि यूके नंबर वरना कार जलकर राख हो गई, जिसमें 4 युवक सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि युवक समय रहते गाड़ी से उतर गए। आज सूचना मिली थी कि तहसील के पास एक चलती गाड़ी में आग लगी है, जिस सूचना पर हम मौके पे आए। जो एक गाड़ी वरना जिसका नंबर UK 07 AN 8966 था, उसमें आग लगी हुई थी। जो मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जो कार में 4 व्यक्ति सवार थे, जो कि यूपी सहारनपुर के रहने में मालूम हुए हैं, जो कि चारों व्यक्ति सेफ हैं। तो जो कुछ पता चला है कहाँ से ये व्यक्ति आ रहे थे? ये व्यक्ति सहारनपुर से चारों आ रहे थे और शिमला घूमने के लिए जा रहे थे। जो भी ये यहाँ पर तहसील के पास पहुँचे तो किसी पीछे गाड़ी वाले ने इनको बताया कि आपकी गाड़ी में आग लगी हुई है, तो उन्होंने गाड़ी को रोक के ये नीचे उतर लिया और उन्होंने अपना सामान भी सारा उतार लिया था। सारे जो चारों व्यक्ति हैं वो सारे सेफ हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से बिल्कुल जल चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पे बुला लिया था। जो ERV हमारी पहुंच गई थी, उसने बुला लिया था फायर ब्रिगेड को गाड़ी को, जिसने आग को बिल्कुल पूरी तरह से बुझा दिया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जलती कार पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। वहीं कार में आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। वाहन चोरी की घटनाएं थमते नहीं थम रही। चोर मिनटों में ही वाहन साफ कर जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जीरकपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां मनी माजरे का एक व्यक्ति अपनी एक्टिवा स्कूटर में गया हुआ था। बाइक पर सवार एक पगड़ीधारी युवक उतरा और उसने इस एक्टिवा को 1 मिनट में ही चोरी कर लिया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर चोर का पता लगाने में जुटी हुई है। ट्राई सिटी में चोरी की वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो ना तो दिन देखते हैं और ना ही रात। बस चोरी की वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे ही वाहन चोरी का मामला थाना जीरकपुर का सामने आया है, जहां मनी माजरा के रहने वाले शैंकी नामक युवक अपनी एक्टिवा खड़ी कर कुछ सामान लेने के लिए गया और कुछ ही मिनटों में वापस लौट आया। वापस लौटने के बाद शैंकी ने देखा तो उसकी एक्टिवा गायब थी, जिसके बाद उसने इधर उधर तलाश की और इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो सामने आया कि 2 सरदार बाइक पर आते हैं और सिर्फ 1 मिनट में एक्टिवा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। वीडियो से साफ जाहिर होता है कि ट्राई सिटी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे का खौफ। ये चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में इन चोरों की तस्वीरें कैद होने के बावजूद भी पुलिस फकीर बनी हुई है और ना जाने थाना पुलिस कौन सा ऐसा चक्रव्यूह रच रही है कि जिससे चोर खुद ब खुद उस चक्रव्यूह में आकर फंसे।
ऐसी स्थिति में साफ जाहिर होता है कि पुलिस सुस्त है और चोर ज्यादा चुस्त। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में हालांकि कोरोना के मरीजों की गिनती लगातार कम हो रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। आज भी ट्राई सिटी में कोरोना से 9 लोगों ने जान गंवा दी, जिसमें चंडीगढ़ में 3, पंचकुला में 2 और मोहाली में 4 लोगों ने कोरोना की जंग हारी है। इसके साथ ही अब ट्राई सिटी में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 7,683 रह गई है। आज कुल 797 नए मरीज आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 144, पंचकुला में 273 और मोहाली में 380 नए पेशेंट सामने आए हैं। मंगलवार को ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 70% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार दिन में भी बादल छाए रहेंगे, शाम को बूंदाबांदी भी होने के आसार हैं। रात का तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतने ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।